This call is now being recorded. हेलो, सबको मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we see about the network. So the duality means the two different networks are dual with each other when VI equation that characterize one network has been the same mathematical form as the VI equation of the other network. Means uh, when two networks are there, they are dual to each other. Means एक जो नेटवर्क है दूसरे नेटवर्क से क्या होता है, डुएल होता है. उस समय में उसका VI इक्वेशन ऑफ दिस one network and the VI equation of the other network are same. At that time, we say that the both network are in dual to each other. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डुएल बोलते हैं. So write down the definition of the duality of a network. Everyone should write the definition of duality of a network. Okay, so the write down two different network are dual. Two different network are dual when VI equation that characterize Sir, repeat करो sir. one network. Hello. Repeat करो Hello. sir. Hello sir, हाँ. repeat करो sir. Two different. हाँ. Two different networks are dual. Two different network are dual when VI equation that characterize one network has the same mathematical form as the VI equation that characterize other network with voltage and current variable interchange Okay, so this is the definition of duality. Okay, now you have to write procedure to draw the dual of the network. Draw the dual of the network. Next point is the procedure to draw the dual of the network. So first step, then on the first step, place node in each mesh. Place a node in each mesh of the original network. Place a node in each mesh
place a node in each mesh of the original network of the original network, full stop. These nodes are non-reference node. These nodes are non-reference node in the dual network. In the dual network. Okay. Then second point, place a node outside the given network, outside the given network, outside the given network. This node is a reference node. This node is reference node of the dual network, of the dual network. This node is a reference node of the dual network. Then third point, connect all nodes, connect all nodes by dotted line, connect all nodes by dotted line through the elements, through the elements traveling only one element at a time, traveling only one element at a time, तो ट्रैवलिंग के बाद क्या है सर, एक बार रिपीट करना. traveling only one element, traveling only one element at a time. Fourth point, for each element transferred, for each element transversed element transverse in the original network, for each element traversed in the original network, replace each element by its dual element, replace each element by its dual element, by its dual element. So dual element क्या होते हैं देखेंगे हम. So the dual elements are मेश का डुअल क्या होता है, नोड. मेश का डुअल क्या होता है, नोड. आपको चार्ट में लिखना है ये. These are the dual elements. मेश का डुअल होगा आपका नोड. देन करंट का डुअल, करंट का डुअल होता है वोल्टेज, वोल्टेज और वोल्टेज का करंट. ओके. नेक्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का डुअल होता है इंडक्टेंस. सो कैपेसिटेंस का डुअल होता है इंडक्टेंस. इंडक्टेंस का डुअल क्या होगा फिर, कैपेसिटेंस. इंडक्टेंस का डुअल
हेलो सर। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ ओके ओके। सो द ड्यूअल ऑफ इंडक्टेंस इज कैपेसिटेंस। Then dual of resistance is conductance। रेजिस्टेंस का जो ये होता है वो क्या होता है? कंडक्टेंस। देन वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स रहेगा ड्यूएल में तो उसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? करंट सोर्स में। ओके, सो दीज आर दी dual elements। these are the dual elements। वोल्टेज सोर्स का ड्यूएल होगा आपका करंट सोर्स। ओके, तो यहां तक सबने लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है और विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स। तो आपको स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ये 4 स्टेप में जो हमने 4 स्टेप देखे हैं लिखे हैं उसके हेल्प से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, हाँ, सो राइट डाउन द न्यूमेरिकल। कंस्ट्रक्ट ड्यूअल ऑफ द नेटवर्क shown in figure। Construct dual of a network shown in figure। So this is the voltage source। This is a 4-volt voltage source। This is a open switch। Then resistor। Then inductor। Then here capacitor। Then here inductor and resistor। Register। Okay, this is the switch S1। This is the open switch S1। This is a 4-volt resistance। This is a 2 Henry inductor, 3 Henry inductor, 1/4 farad, and this is the 4 ohm voltage source। 4 ohm voltage source। Okay,
हाँ, this is the numerical and we have to construct the dual of this network. हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? डुअल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है इस नेटवर्क का। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे, या आप उसी में कर सकते हो। तो ठीक है, इसको फिर से ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कोई पढ़ेगा, कोई बताएगा? Place a node in each mesh, a original network. These nodes are non-reference node in the dual network. ड्यूअल नेटवर्क। तो हमें क्या निकालना है? नोड निकालना है मेश में। ईच मेश में हमें क्या निकालना है? एक नोड निकालना है। तो हमारे पास कितने मेश है यहाँ पे? हाउ मेनी मेशेस आर देयर? कितने मेश है इसमें? कितने मेश दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? हाउ मेनी मेशेस? हेलो, कितने मेश है यहाँ पे? बताओ, कितने मेशेस है? 1 2 3, कितने मेशेस है? 3 3 मेशेस है। हाँ, हियर 3 meshes are there. So हम यहाँ पे इसमें क्या निकालेंगे? 3 meshes के अंदर एक नोड निकालेंगे। यानी क्या निकालना है? प्लेस अ नोड इन ईच मेश ऑफ द ओरिजिनल नेटवर्क। ये हमारा ओरिजिनल नेटवर्क है, तो ओरिजिनल नेटवर्क के जो मेश है उनके अंदर हमें क्या निकालना है? नोड निकालना है या नोड प्लेस करना है। तो हम हमारे पास 3 मेश है, तो 3 मेश है, इसलिए हमने यहाँ पे कितने नोड निकाले? 3 नोड निकाले। तो इसको मैं ये देता हूं नंबर, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 नोड दे दिया मैंने, नंबर दे दिया। ओके, सो ये नोड्स को हम कौन से नोड्स बोलेंगे? कौन से नोड बोलेंगे इस नोड को? कौन से नोड बोलेंगे? नॉन रेफरेंस नोड्स। नॉन रेफरेंस नोड। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन रेफरेंस नोड। इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेफरेंस नोड। ठीक है, अब ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो चुकी है यहाँ पे। अब सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? एनीवन? Place a node outside the given network. This node is reference node of the network. डुअल नेटवर्क। ओके, सो हमें अभी क्या निकालना है? एक नोड निकालना है आउटसाइड ऑफ द गिवन नेटवर्क। ये हमारा गिवन नेटवर्क है, उसके आउटसाइड में यानी उसके नीचे हम क्या निकालेंगे? एक नोड निकालेंगे, उसको नंबर देंगे 4, और उस नोड को हम बोलेंगे कौन सा नोड? इस रेफरेंस नोड। इस नोड को बोलेंगे हम रेफरेंस नोड। तो दिस इज सेकंड स्टेप। दिस इज आवर सेकंड स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप समझ में है सबको? Yes, sir. हाँ, पहले स्टेप में क्या करना है? हमें जितने हमारे मेशेस है उस मेशेस के अंदर हमें नोड प्लेस करना है, तो और उसको नंबर देना है। उस नोड को हम बोलते हैं नॉन रेफरेंस नोड। उस नोड को हम क्या बोलते हैं? नॉन रेफरेंस नोड। फिर हमें एक नोड हमारे नेटवर्क के आउटसाइड में प्लेस करना है, तो हम नेटवर्क के बाहर एक नोड प्लेस करेंगे, उसको नंबर देंगे, जितने हमारे उसके बाद का नंबर देंगे। अब यहाँ पे नंबर 3 नंबर है, तो उसके बाद का नंबर दिया 4। उस नोड को हमने बोला है रेफरेंस नोड। दिस इज आवर रेफरेंस नोड। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब हमें क्या करना है, कनेक्ट ऑल नोड्स बाय डॉटेड लाइन। हमें ये जो पूरे नोड्स है इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट करना है कि हर एक एलिमेंट के अंदर थ्रू ये जाना चाहिए डॉटेड लाइन, हर एक एलिमेंट के थ्रू ये डॉटेड लाइन जाना चाहिए। इस तरह से हमें इसके क्या निकालना है, डॉटेड लाइंस निकालना है। ठीक है, तो इसलिए उसने थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि कनेक्ट ऑल दी नोड्स बाय डॉटेड लाइन थ्रू द एलिमेंट। हमें डॉटेड लाइन तो निकालना है, लेकिन कहां से, थ्रू द एलिमेंट से। और एक डॉटेड लाइन, एक यानी एक जो लाइन जाएंगी वो हर एक सेपरेट एलिमेंट से जाएंगी, सेपरेट एलिमेंट से जाएंगी। तो इस तरह से हमें इसकी डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि अब 1 2 4 के बीच में ये कौन आ रहा है डॉटेड लाइन में, पहले आएगा ये एलिमेंट, ये हमने लिया फर्स्ट एलिमेंट को, 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को। फिर हमारा ये क्या है, ओपन स्विच है, फिर ओपन स्विच ये भी एक एलिमेंट ही है, तो इसलिए इस एलिमेंट के थ्रू हम ये क्या कर रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं। So this is our second dotted line. Then ये भी जो एलिमेंट है ये किसके बीच में आएगा, ये 1 और 4 के बीच में आएगा। सो दिस इज अ थर्ड एलिमेंट, है ना। अब एक और 4 के बीच के हो गए। अब नेक्स्ट जो नोड है, अब 1 और 2 के बीच में कौन सा एलिमेंट है, 2H, तो इसके बीच में रहेगा। फिर 2 और 3 के बीच में कौन सा एलिमेंट आ रहा, कैपेसिटर आ रहा, तो कैपेसिटर के बीच में आएगा। फिर अब 3 और 4 के बीच में ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा, और ये वाला 3 और 4 के बीच में और एक 3 हेनरी का इंडक्टर आ रहा। सो हर एक एलिमेंट एक इसमें कनेक्ट हो गए, एक नोड के बीच में, यानी 2 नोड के बीच में हर एक एलिमेंट सेपरेट कनेक्ट हुआ। कोई डबल हुआ क्या कनेक्ट, यस और नो? हर एक 2 नोड के बीच में सिंगल ही एलिमेंट हमने कनेक्ट किए, या यस सर। क्या हमने एक इसमें 2 एलिमेंट कनेक्ट किए क्या कोई? नो सर। ओके, तो हमें ऐसा ध्यान में रखना है कि 2 नोड के बीच में जब हम डॉटेड लाइन कनेक्ट कर रहे हैं तो वो एक के ही एलिमेंट के थ्रू जाना चाहिए, एक ही एलिमेंट के थ्रू जाना चाहिए। उसी तरह से हमें उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। ठीक है, सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप, कि कनेक्ट ऑल द नोड्स बाय डॉटेड लाइन थ्रू द एलिमेंट ट्रेवलिंग ओनली वन एलिमेंट एट अ टाइम, ओके। यानी ये 1 to 4 जा रहा तो ये एक एलिमेंट के थ्रू पास होना चाहिए, ये 1 to 4 जाना तो ये स्विच से पास हो रहा, ये 1 to 4 जा रहा तो ये 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है। अब जब ये 1 to 2 जा रहा है तो ये
2 हेनरी इंडक्टर से पास हो रहा है। जब ये 2 to 3 जा रहा है तब ये 1/4 फैरेड के कैपेसिटर से पास हो रहा है। वैसा ही जब ये 3 to 4 जा रहा है तो ये 4 ओम से पास हो रहा है और दूसरा 3 हेनरी से पास हो रहा है। तो इस तरह से हमें ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस इज अवर थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, ईच एलिमेंट ट्रावर्स्ड इन द ओरिजिनल नेटवर्क रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय इट्स डुअल नेटवर्क। तो हमें हर एक जो एलिमेंट है वो क्या करना है, अभी डुअल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नोड्स है वो ड्रॉ करेंगे यहां पे। सो दिस इज अवर नोड 1, नोड 2 और नोड 3, और इधर हम करेंगे ड्रॉ नोड 4। सो दिस इज अ नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड दिस इज नोड 4। ये हमारे 4 नोड हो गए, है ना। दिस इज 1, 2, 3 आर दी नॉन रेफरेंस नोड और फोर्थ नोड इज अ रेफरेंस नोड। ठीक है, हाँ। तो ये हमने ये नोड ड्रॉ कर लिए। अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहां पे चेक करेंगे 1 to 4 में कौन कनेक्टेड है। 1 to 4 में पहला एलिमेंट कौन सा कनेक्टेड है, वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल क्या होता है, करंट सोर्स। करंट सोर्स। तो हम अभी क्या करेंगे, 1 और 4 के बीच में क्या लगाएंगे, करंट सोर्स। वन और 4 के बीच में हमने लगाया करंट सोर्स। अब यहां पे पॉजिटिव कैसा है, ऊपर है, इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसी आ गई, अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसी आई, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये 1 to 4 में कनेक्ट हो गए। हो गए 1 to 4 में कनेक्ट। यस सर। हाँ, अभी देख रहे हैं यहां पे, जब हम इसको कन्वर्ट किया हमने वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, तो इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम, बट इसका जो यूनिट है वो सोर्स का यूनिट रहेगा, यानी एलिमेंट का यूनिट रहेगा। तो ये क्या है, करंट सोर्स है। करंट सोर्स का ये क्या होता है, यूनिट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। हाँ, तो ये होगा 4 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। आपका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा, बट यूनिट चेंज हो जाएगा, बट यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द करंट सोर्स। अब ये स्विच है, अब ये स्विच ओपन स्विच है, इसका ड्यूअल क्या होगा, ओपन का ड्यूअल होता है क्लोज, यानी ओपन स्विच का ड्यूअल क्या होता है, क्लोज स्विच। हाँ, तो यहाँ पे कैसा है, ये कनेक्ट ओपन स्विच है यहाँ पे, पर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो। हाँ, सो 1 to 4, तो मैं 1 to 4 में इसको क्लोज स्विच करता हूं। यहाँ पे S1 क्लोज रहेगा, क्लोज। यहाँ पे कैसा था, वो ओपन, ओपन था, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। अब क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। 4 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस का ये क्या होता है, ड्यूअल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेम इससे करते हैं। कंडक्टेंस हम रिप्रेजेंट सेम ऐसे करते हैं, जिस तरह से रेजिस्टेंस
ये करते हैं वैसा ही हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस रिप्रेजेंट होता है, तो उसका जो साइन है वैसा ही रहेगा। सो रेजिस्टेंस का साइन वैसा रहेगा कंडक्टेंस जैसा। वैल्यू क्या रहेंगी, सेम। वैल्यू क्या होती है, सेम। और मुझे बताओ कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? कंडक्टेंस का यूनिट होता है मो। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, मो, जो हम उल्टा ओम निकालते हैं, है ना। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो। सो मो हम ऐसे निकालते हैं, ओम का जो हमारा ओम का साइन होता है ऐसा, उसका उल्टा होता है ये मो। सो इस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं। सो द कंडक्टेंस का, सॉरी रेजिस्टेंस का ड्यूअल क्या होता है, कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 4 मो। 4 मो, ठीक है, या तो समझो सबको? यस सर। ओके, हाँ। अब ये हमारा वन पॉइंट हो गया। दिस इज अवर, ये एक ही पूरा नोड ही है, ये वन नोड है। अब हमें 1 to 2 में ज्वाइन करना है। 1 to 2 में क्या ज्वाइन है अभी, इंडक्टेंस। इंडक्टर। तो इंडक्टर का ड्यूअल क्या होता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। तो हम अभी यहाँ पे क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालते समय हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। और उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, इसकी वैल्यू क्या 2 रहेगी, फैरेड। 2 फैरेड। वेरी गुड, इसकी वैल्यू रहेंगी आपकी 2 फैरेड। ओके, वैसा ही 2 और 3 के बीच में क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर। कैपेसिटर का ड्यूअल क्या होता है, इंडक्टेंस। इंडक्टर। तो इंडक्टेंस अब हम यहाँ पे निकालेंगे, हम इंडक्टर, और इसका ये क्या रहेगा वैल्यू, हेनरी। तो कितना हेनरी, 1/4 हेनरी। 1/4 हेनरी इज द वैल्यू ऑफ दिस इंडक्टर। हाँ, अब 3 और 4 के बीच में क्या कनेक्टेड है, पहले 3 और 4 के बीच में क्या कनेक्टेड है, इंडक्टर। हाँ, तो इंडक्टर का क्या होता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर की इसलिए पहले हम कैपेसिटर निकाला, कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 फैरेड। 3 फैरेड। वेरी गुड। सो वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज 3 फैरेड। अब और क्या कनेक्टेड है 3 और 4 के बीच में, 4 ओम। 4 ओम। 4 ओम का क्या हो जाएगा ड्यूअल, 4 मो। 4 मो यानी कंडक्टेंस। सो दिस इज द 4 मो, 4 मो। सो दिस इज द ड्यूअल ऑफ दिस नेटवर्क। ये नेटवर्क का ये क्या है, ड्यूअल नेटवर्क है। दिस इज द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ दिस नेटवर्क। तो ये जो हमने नेटवर्क निकाला, ये नेटवर्क क्या है, ये ड्यूअल नेटवर्क ऑफ दिस ओरिजिनल नेटवर्क। समझा कैसे निकालते हैं हम ड्यूअल नेटवर्क? यस सर। ओके, सर एक बार बताए ना सर, हाँ। वो 4 और 3 का आपने कैसे लिया तो? ये वाला 4 और 3, 3 हाँ और सर। 4 के बीच में क्या, हाँ 3 और 4 के बीच में कौन कनेक्टेड है यहाँ पे डॉटेड लाइन से, 3 हेनरी का इंडक्टर और 4 ओम का रेजिस्टर। तो हमें इसको 3 और 4 में कनेक्ट करना है, 3 और 4 के बीच में कनेक्ट करना है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो इंडक्टर का ड्यूअल क्या होता है, इंडक्टर का ड्यूअल क्या होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटेंस। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ज्वाइन किया, कैपेसिटर ज्वाइन किया। और उसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम, बट यूनिट डिफरेंट हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड हमने सेम ही रखा। इंडक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, यहाँ पे 3 हेनरी था, तो यहाँ पे हमने ये 3 तो वैसे ही रखा, बट कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, फैरेड। 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 यहाँ पे रखा है 3 फैरेड।
इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 3 फैरेड। वैसा ही यहाँ पे अभी ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का डुअल क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। तो इसलिए मैंने कंडक्टेंस निकाला और उसके बाद जो एम्पलीट्यूड था एम्पलीट्यूड सेम रखा, बट जो यूनिट है उसको क्या कर दिया मैंने, ओम का मो कर दिया, ओम का मो कर दिया। तो इसलिए ये क्या आ गया यहाँ पे 4 मो, इसलिए ये क्या आ गया 4 मो। समझा? हाँ यस सर। सर ओके। सो दिस इज द डुअल नेटवर्क। सबने लिख लिया, सबने ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. सर ओके। So next, the next numerical. Write down the next numerical. Draw the dual network. Draw the dual of the network shown in figure. Draw the dual of the network shown in figure. Draw the dual of the network shown in figure. Okay. So here voltage source, then open switch, then resistors, then here inductor, then capacitor, then here resistor, then here capacitor, then here inductor, then here resistor. This is the 5 ohm resistor, 3 Henry resistor, 1/6 farad, then 7 ohm resistor. This is 3 Henry inductor, 5 ohm resistor. This is the switch S1. This is the voltage V of T. And this is the capacitor 1/8 farad. 1/8 farad. ओके। हाँ, तो ये आपका न्यूमेरिकल है, इसका हमें डुअल नेटवर्क ड्रॉ करना है, इसका हमें डुअल नेटवर्क ड्रॉ करना है। तो क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Place non-reference node in each mesh of the given circuit. कितने मेश है यहाँ पे, हाउ मेनी मेशेस आर देयर? 3 मेशेस है। 3 meshes. हाँ, तो 3 मेश है, तो यहाँ पे 3 नॉन रेफरेंस नोड आएंगे और उसको हम नंबर दे देंगे 1, 2 और 3। सेकंड स्टेप, हेलो, outside reference node. Place the reference node inside the रेफरेंस नोड आउटसाइड द नेटवर्क और उसको नंबर दे देंगे, 4th नंबर दे दिया उसको मैंने अभी। हाँ, फिर अभी थर्ड स्टेप,
थर्ड स्टेप क्या है? Connect all nodes by dotted lines. हाँ, connect all node by dotted line and this dotted line through only one element, in only one element. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? सो ये हम डॉटेड लाइन निकालेंगे, हम पहला जो ये लेंगे इसको 1/8 फैरेड का लेंगे, तो ये किसका आ गया? फिर V ऑफ टी, फिर 1 to 4 में हमारा स्विच भी आएगा, देन 1 to 4 में ये 5 ओम का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, ओके। देन 1 और 2 के बीच में ये 3 हेनरी का इंडक्टर, फिर 2 और 4 के बीच में ये आ रहा है, तो इसलिए हम 2 और 4 के बीच में ये वाला कर देंगे, फिर 2 और 3 के बीच में ये कैपेसिटर का आ रहा है, तो ये कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, फिर वैसा ही 3 और 4 के बीच में ये 5 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है और 3 हेनरी का रेजिस्टेंस इंडक्टर भी आ रहा है। तो इस तरह से हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, ये हमारी थर्ड स्टेप हो चुकी है। अब फोर्थ स्टेप क्या है? व्हाट इज आवर फोर्थ स्टेप? For each element transfer in the original network, replace हाँ, each element by its dual network. डुअल नेटवर्क, तो हमें इसको ट्रांसफर करना है और उसका डुअल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए हम पहले क्या कर लेंगे कि जो नोड निकाले थे, नॉन रेफरेंस नोड, वो पहले ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 और 3 और इधर 4, ठीक है? इसको नंबर भी दे देंगे हमारे लिए, सो 1 2 3 और ये 4, ठीक है? अब इसको और ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो अभी बताओ 1 और 4 में कौन जॉइन है पहले? Capacitance. हाँ, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स का हो जाएगा करंट सोर्स में कन्वर्ट। इसका भी साइन ऊपर था प्लस, इसलिए ये अपवर्ड रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम? आई ऑफ टी। क्या लिखेंगे हम? आई ऑफ टी। यहाँ पे वी ऑफ टी था, तो यहाँ पे क्या बन गया अभी? ये आई ऑफ टी, ठीक है? फिर उसके बाद कौन है? कौन सा एलिमेंट है? क्या है? हेलो, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ले लेंगे। हाँ, तो कैपेसिटेंस का क्या होता है? डुअल Inductance. इंडक्टेंस। हाँ, तो इसका इंडक्टर निकालेंगे और उसकी वैल्यू क्या रह जाएंगी? 1/8 1/8 हेनरी। हेनरी। वेरी गुड, 1/8 हेनरी। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है? ओपन सर। ओपन स्विच। तो ओपन स्विच का ड्यूअल क्या होता है? Close switch. क्लोज स्विच। ओपन स्विच का ड्यूअल होता है आपका क्लोज स्विच। तो S1 हमने निकाल लिया। फिर क्या है? 1 और 4 के बीच में और कौन है? 5 ओम का रेजिस्टेंस भी है 1 और 4 के बीच में। Yes, sir. हाँ, तो क्या होता है रेजिस्टेंस का? Conductance. कंडक्टर। हाँ, तो बताओ उसका क्या आ जाएगा वैल्यू? 5 more. 5 मो।
उसकी वैल्यू आ जाएंगी 5 मो। So this is the value of 5 mho. ओके 5 mho का ये कंडक्टेंस हो गया। हाँ अब मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में कौन है? हमारा 1 और 4 का हो गया अभी। 1 और 2 के बीच में क्या है? इंडक्टेंस 3 हेनरी का इंडक्टेंस, उसका ड्यूअल क्या होता है? कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस। सो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस। 1 और 2 के बीच में का ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 5 फैरेड 3 फैरेड 3 फैरेड। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? 2 और 4 के बीच में कोई है क्या? टू और 4 के बीच में है क्या कोई? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है कितने का? 7 ओम का। उसका भी कन्वर्जन क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस सॉरी क्या है? 3 और 4 के बीच में क्या है? 2 और 4 के बीच में क्या है? 7 ओम रेजिस्टेंस 7 ओम का रेजिस्टेंस है, उसका ड्यूअल क्या होता है? कंडक्टेंस कंडक्टेंस। तो कितना हो जाएगा वो? 7 मो 7 मो। वेरी गुड, दिस इज द 7 मो। नेक्स्ट 2 और 3 के बीच में क्या है? 2 और 3 के बीच में क्या है? कंडक्टेंस कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हाँ 2 और 3 के बीच में क्या है? कैपेसिटेंस। उसका क्या होता है? उसका ड्यूअल क्या इंडक्टेंस होता है? इंडक्टेंस। तो कितना हो जाएगा वो? 1/6 हेनरी 1/6 हेनरी। 1/6 हेनरी। ओके, इसका 1/6 हेनरी हो गया। फिर 3 और 4 के बीच में क्या है? बताओ, 3 और 4 के बीच में क्या है? 3 और 4 के बीच में क्या है? सब 5 ओम रेजिस्टेंस है 5 ओम का रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस और 3 हेनरी का इंडक्टेंस है। तो हमें अलग अलग इसका ये निकालना पड़ेगा। हाँ मुझे बताओ फिर 5 ओम यानी रेजिस्टेंस का ड्यूअल क्या होता है? कंडक्टेंस कंडक्टेंस। हाँ तो कंडक्टेंस हो कंडक्टेंस जाएगा कितना कंडक्टेंस? कंडक्टेंस 5 मो 5 मो। हाँ और 5 और क्या है? 3 हेनरी का इंडक्टर है, तो उसका क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस। 3 फैरेड कितने का कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस? 3 फैरेड 3 फैरेड। 3 फैरेड सो दिस इज द 3 फैरेड का कैपेसिटेंस। सो दिस इज द डुअल नेटवर्क ऑफ दिस गिवन नेटवर्क। ये क्या है? डुअल नेटवर्क है इस नेटवर्क का। इस नेटवर्क का ये डुअल नेटवर्क है। समझा? हेलो सर हाँ हेलो बोलो। सर आपने यूनिट गलत दिया है सर वो 5 ओहम लिखा है मो नहीं लिखा सॉरी है हाँ 5 मो करना है यहाँ पे, 5 मो। दिस इज 5 मो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया ये? यस सर यस सर ओके
हाँ हाँ हेलो बोलो सर। बोलो। सर वो प्रीवियस जो डुअल डायग्राम बनाया सर, सर उसमें सर जो फर्स्ट एलिमेंट आपने फैरेड से लिया था सर, हाँ जो कैपेसिटेंस था, सॉरी हाँ हाँ सर, जो अपन फर्स्ट एलिमेंट लेते सर, हाँ। तो सर जो अपन ड्रॉ करते डुअल डायग्राम, तो सर उसमें से लेना फर्स्ट लेना चाहिए कि जो आपने वोल्टेज लिया वहां से लिया, नहीं, आपने सेकंड लिया वहां कैसे से भी लेना चलता है, चाहिए? कैसे भी चलता है। आपको जो आप फर्स्ट उसको वोल्टेज को फर्स्ट लो या वो कैसा है, आपका इसमें ही है ना, वो काय में है, पैरेलल में है ना, पैरेलल में आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, पहले करो या बाद में करो, सेम ही रहता है ना वो। हाँ ठीक है सर। इसलिए मैंने बाद में लिया या पहले लिया, कोई मैटर नहीं करता वो, है कि नहीं। यहाँ पे आप कैपेसिटर पहले यानी इंडक्टर पहले लगाओ या करंट बाद में लगाओ, कोई मैटर करेगा क्या, क्योंकि काय में है ये, पैरेलल में है कि नहीं। इसलिए हम किसको भी पहले ले सकते हैं, पहले हम स्विच को भी ले सकते हैं, पहले हम 5 ओम को भी ले सकते हैं, जैसे आप कहो ऐसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। ओके। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है। सो द थर्ड न्यूमेरिकल, construct the dual circuit of the for the network, given network, and the circuit is given as, this is the open switch, this is the voltage source, this is the resistance, this is the inductor, this is capacitor, this is resistor, this is inductor and resistor, and here current source. This is the current source of 50 ampere. This is the 0.8 Henry, 0.5 farad. This is 3 Henry inductor, 4 ohm resistor, 5 ohm resistor. This is 6 ohm. This is a 100-volt voltage source, and this is the switch S. Okay. ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका ड्यूअल नेटवर्क निकालना है। सबको निकालते आएगा? यस सर। हाँ, तो मैं कल इसका सबको मुझे बताना है कि आपने कैसा इसको निकाला है करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का समझ का टॉपिक सबको? हेलो, सबको ड्यूअल नेटवर्क कैसे निकाला समझा क्या? यस सर। सबको समझा? यस सर। Yes. ओके।